नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज फिर से हमारे साथ मशहूर राइटर आवाज वर्मा जी ज्वाइन कर रहे हैं। आवाज जी को आपने इससे पहले भी उनकी दो बुक्स को लेकर हमारे चैनल पर बात करते हुए सुना है। आज उनका तीसरी बुक, जो आज की जमाने के हिसाब से बहुत परफेक्ट बुक बोल सकते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, ये बुक एक बेस्ट सेलर बुक तो है ही, साथ ही साथ लोगों को में सिर्फ बेस्ट सेलर नहीं, लोगों की चर्चा के हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन बन के खड़े हैं। वो बुक है इंडिया मॉडिफाइड। उस बारे में हम बात करेंगे। तो आपने नाम इंडिया मॉडिफाइड ही क्यों चुना आवाज जी? मॉडिफाइड मतलब होता है परिवर्तन। आप लोग बंगाल में जब आप ममता दीदी फर्स्ट टाइम आई थी तो उस परिवर्तन वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ था। तो वो ये समझिए एक तरह से 2014 के बाद ये भारत में भी बहुत परिवर्तन आया है। न सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन, बहुत इकोनॉमिक सोशल बहुत सारे के कहते हैं। तो इसलिए इसको मॉडिफाइड वर्ड यूज किए हैं। और क्या कहते हैं, चूंकि मॉडिफाइड में MODI आता है तो बुक का कवर है, कवर का नाम तो मॉडिफाइड नहीं है, मॉडिफाइड हो गया। जी 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 हाँ जी। वो pun intended है, that is a pen that is intended. So tell me about your book India Modified. Actually, this book is the political history of India from 2009 to 2014. The book traces the political journey of Rahul Gandhi as a youth icon to a failure in 2014. It traces the political history from the journey of BJP from the fourth party of UP elections to becoming to capturing 72 seats in UP in 2014 Lok Sabha elections. This book this book also tells about the region-wide voting pattern of different states, like how Rajasthan can be classified into different regions like Shekhawati, Mewar, Marwar, Maharashtra into Marathwada, Vidarbha, Western Maharashtra, Gujarat into Saurashtra, and other regions. So all these regions, they have their all own problems, their own voting patterns, their own leaders. So all this has been captured in my book. All major state elections like UP elections, Gujarat elections, Punjab elections, everything is covered in this book. Sir, who are the target audience of this book? Target audience, like mostly people who are like first time voters, like many of the first time voters who will be there in the age group 18 to 22. So people who will be like 18 to 22 at in 2024, they must be to 8 or 10 years in 2010, 2012, 13, 14. At that time they need to be told what was the situation about of that time. Many of the things, like I think at that time there was a very famous comment by the prime minister itself. He told that पैसे पेड़ पे नहीं उगते. Just imagine a prime minister going and telling पैसे पेड़ पे नहीं उगते. And like so many things in the memory of people are very short. They cannot recollect things of like past 5 years. So my purpose of this book is to remind people what was the situation 10 years back and how like things have changed. Like many of the political analysts, journalists, they can read the book as a subject of political strategy and political roadmap. But actually the current, since now the elections are like the most important thing in the market, so like this book is for everyone can read this book at least for gaining insight about how BJP came to power in 2014. So Do you personally feel modified or Modika yes, Parivar?
यस यस, बिल्कुल बिल्कुल मॉडिफाइड परिवर्तन तो अब हर चीज में लगता है। जैसे पहले ये मोबाइल का बिल कितना कितना आता था, आपको खुद याद है, पहले तो मोबाइल में रोमिंग लगता था। मेडिकल बिल्स आप देख लीजिए, जन औषधि के चलते वो कितना घट गया है आजकल। आरटीआई कितना इजी हो गया है, पहले आरटीआई फाइल करना बहुत 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 मुश्किल होता था, तो आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकती हैं। रेलवेज के देखिए, रेलवेज कितना बढ़िया हो गया, पहले ट्रेन कितना लेट चलती थी, 12 घंटा 16 घंटा कॉमन रहता था। आपको याद है इन द टाइम्स ऑफ मल्लिका अर्जुन खड़गे, व्हेन आई थिंक मल्लिका अर्जुन खड़गे इज कांग्रेस चीफ नाउ, and when he was a railway minister, when you have booked the ticket, when you are boarding the train, do you correct ma'am, that when you were boarding the train you had to pay extra, because the train fare has increased by the time in the 3 months or 4 months, and you have to pay extra, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था पहले मल्लिका अर्जुन खड़गे के टाइम में। ट्रेन पे चढ़ने के बावजूद, ट्रेन के चढ़ने के बाद जबकि आपका टिकट बुक रहता था तब भी आपको एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ता था, क्योंकि रेलवे भाड़ा बढ़ गया है अब तो। और इसके अलावा देखिए पीएमओ में अब ग्रीवांस पोर्टल है, ग्रीवांस पोर्टल को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अगेंस्ट। अब तो ट्वीट करने से तो हम लोग का मैंने हमारा ट्वीट मिनिस्टर तक पहुंच जाता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन आज से 10 साल 15 साल पहले तो लोग सोच नहीं सकते थे डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में। और ये सब जो हम जितना भी बता रहे हैं, वट एवर आई एम टेलिंग, दिस इज रियली दिस इज कंसर्निंग कॉमन पीपल, not like I am telling something about Indo-China relations, Indo-US relations. I am talking about common man. एक आम आदमी को इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये एकदम हम रोटी कपड़ा मकान का बात कर रहे हैं। हम इंडो चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान ये सब नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो चीज बिल्कुल आम आदमी के हित का बात है। What do you think? What the most important thing that was the turning point in BJP coming to power in 2014? 2014 में देखिए, 2009 में हमने देखा बीजेपी का करीब पहली बार हमने देखा कि 20% से भी नीचे बीजेपी का वोट शेयर गिर गए थे। लेकिन अचानक 2014 में क्या मैजिक मोदी ने कर दिए कि 2014 में बीजेपी करीब 40 साल के बाद आफ्टर 84 एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही सिर्फ नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक सिंगल पार्टी लेके पावर में आई। क्या बोलेंगे आप? देखिए इसके लिए हमको समझना होगा कि कोई पार्टी एक सीट को कैसे जीतता है और हाउ पार्टी विंस अ सीट। एक पर्टिकुलर जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वोटर्स अपना अलीजियंस, अपना लॉयल्टी शिफ्ट करता है। अभी मान लीजिए जैसे आसनसोल में इलेक्शन हुआ होगा, जब पहले लेफ्ट का शासन था तो 5 लाख लोग पहले, 5 लाख में 3 लाख लोग पहले लेफ्ट को वोट करते थे, फिर वो 5 लाख में से 3 लाख जो है वो बाद में टीएमसी को वोट करने लगे, तो वो सीट आसनसोल का सीट लेफ्ट की जगह टीएमसी को जाने लगा। तो वही होता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने के लिए एक पर्टिकुलर वोट सेक्शन जो है वो अपना अलीजियंस बदलता है, अपना लॉयल्टी बदलता है। तो वही जो 2009 में जो लोग कांग्रेस को वोट किए वही लोग 2014 में जाके बीजेपी को वोट किए। और अगर आप पूछिएगा तो इसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से अन्ना आंदोलन, बिकॉज अन्ना आंदोलन के बाद एक ये हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था हिसार का, जिसको अमूल एक स्लोगन लाया था हार या ना। हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, वो उसका स्लोगन लाया था हार या ना, whoever wins Hisar by election will be forming the next government. That was the slogan at that time. And that time Arvind Kejriwal, who is now like he's in the other camp, at time he campaigned against Congress. And I think Kuldeep Bishnoi, that is covered in my book, that Kuldeep Bishnoi was the candidate from Hisar by election, and I think he won the election, and like later he joined the NDA alliance. So लेकिन उस समय भी हम नहीं कर सकते कि वो टर्निंग पॉइंट था, लेकिन वो एक लोगों को शिफ्ट होना शुरू हो गया था, लोग कांग्रेस की तरफ विमुख होना शुरू हो गए थे। उनको
वो कांग्रेस का विकल्प खोजने लगे थे। तो उसके बाद 2012 का यूपी इलेक्शन में भी बीजेपी 4th पोजीशन पे थी, 4थे पोजीशन पे थी। उसके बावजूद ये जब अरविंद केजरीवाल अपना खुद का पार्टी बनाया और फिर जो है वो कांग्रेस के साथ अलायंस कर दिया, तब लोगों को समझ में आया कि एक ही विकल्प है, मोदी। तो यही मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, यही हुआ होगा कि अन्ना आंदोलन के या रामदेव जी का आंदोलन जो हुआ, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, कांग्रेस जो है वो ठीक नहीं है, वो कांग्रेस की जगह वो लोग एक विकल्प खोजे और वो विकल्प बीजेपी के रूप में निकल के आया। आप क्या पर्सनली 2014 में एक्सपेक्ट किए थे मोदी इतने बड़े मैंडेट लेके आएंगे? नहीं, 2014 में तो एक्सपेक्टेड नहीं था। उस टाइम तो लग नहीं रहा था, क्योंकि उससे पहले मतलब बीजेपी का बहुत ही बड़ा दुर्गति हो गया था 2009 के इलेक्शन में। और लास्ट टाइम जब 2004 में ये 1999 में जब बीजेपी पावर में आया था, तब उसको टीडीपी का और अलग छोटे छोटे टीएमसी का वगैरह वगैरह का जरूरत पड़ा था। तो हमको I was expecting BJP to get around 220-250 seats, and other seats they will manage with their allies. I was expecting BJD, Jayalalitha. Jayalalitha was a very good friend of Modi ji, so like I was expecting at least they should support BJP when it becomes the single largest party. But people had something else in mind, and that is good also. BJP came with a clear mandate. क्यों लोग क्या किसी पागल को पावर में नहीं लाना चाहते थे इसलिए? सॉरी मैम, लोग क्या किसी पागल को मेंटली इंस्टेबल किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर की गद्दी में देखना नहीं चाहते थे इसलिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर बनने का तो एक सबसे बड़ा या कोई भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने का सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं, ये क्वालिफिकेशन है कि उसको ही शुड बी ऑन मेंटली साउंड कंडीशन। तो अगर किसी में अगर कुछ भी मेंटल 1% भी प्रॉब्लम है, तो वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है 2000 जो 370 जो आर्टिकल है 370 इसको जो हटाया गया है, ये क्या बीजेपी को जम्मू कश्मीर में वोट बढ़ाने में कोई सहायता करेंगे? आर्टिकल 370, देखिए आर्टिकल 370 इज नॉट a political I can say political vote bank issue. It is a national issue. अगर if like अगर कश्मीर में जो पत्थरबाजी होता है वो सिर्फ कश्मीर के लोगों पे नहीं होता है, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों पे होता है, सीआरपीएफ के लोगों पे, बीएसएफ के लोगों पे। पुलवामा अटैक्स हुआ था तो फिर कर्नाटका के लोगों का डेथ हुआ था, उसमें तमिलनाडु के लोगों का डेथ हुआ था, उरी अटैक में बिहार के लोग मरे थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग मरे थे। तो ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो और ये तो क्या कहते हैं, बीजेपी 370 हटाने का तो क्या कहते हैं, ये आज से नहीं, 1996 में जब इनका कैंपेन चलता था तब से लेके 370 राम मंदिर, सीएए, इनको लेके इनका ये कैंपेन चलता था। और इस बार तो इनको फर्स्ट टाइम इतना हेवी मेजॉरिटी आया, तो फिर आर्टिकल 370 तो खैर हटना चाहिए ही था। और अब तो देखिए क्या कहते हैं, अब तो फॉर्मूला रेस श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब लोगों का क्या कहते हैं, लोगों को गलत जगह से उनका ध्यान हट के सही जगह लग रहा है। तो कुछ दिन पहले हम देखे एक फोटो सचिन तेंदुलकर का, ही वाज विजिटिंग द शंकराचार्य टेम्पल इन श्रीनगर।
आपका 2024 में इलेक्शंस में क्या प्रेडिक्शन है? आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार कर पाएंगे? इलेक्शन ऐसा चीज है कि कोई भी श्योर नहीं हो सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बीजेपी। 2004 में जब बीजेपी का एक कैंपेन था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग में भी बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था उस टाइम 2004 में। और देखिए जब रिजल्ट आया तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मेजोरिटी से हारा, लेकिन 20-30 सीट इधर उधर हो गया, और ये लोग करीब ये लोग सरकार नहीं बना पाए। तो इस टाइम तो बीजेपी का डेफिनेटली अपर हैंड है। ये इस बार तो इन साउथ में भी काफी सारा गेन होने का चांसेस है। तमिलनाडु में अन्य मलाई के रैली में अच्छा खासा भीड़ जुट रहा है। वेस्ट बंगाल में काफी अच्छा चांसेस है, और नॉर्थ के असेंबली के पोल्स में तो अनएक्सपेक्टेड जीत हुआ है लोगों का। तो इसलिए इस बार लगता है कि इस बार चांसेस बहुत ब्राइट है। और इस बार ये बीजेपी के नाम पे नहीं इलेक्शन है, ये मोदी इज अ ब्रांड। मोदी मोदी को फिर से लाओ। बट द ग्रेटेस्ट रिस्क हमको जो लगता है ये यूनाइटेड ऑपोजिशन, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हम बहुत दिनों बाद यूनाइटेड ऑपोजिशन सामने आ रहा है, और इस बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर यूनाइटेड है, कहीं कहीं जगह पे तो है, यूपी में है, बिहार लेकिन में यूपी है। में बहन जी तो नहीं है ना साथ में? यूपी में बहन जी तो साथ में नहीं है ना? हाँ, बहन जी नहीं है, लेकिन एसपी हैं, और ये कांग्रेस के साथ में है, महाराष्ट्र में है, और आम आदमी का दिल्ली में है। देखिए कभी भी दुश्मन को कम हो करके नहीं आंकना चाहिए। और बंगाल आप में क्या हो जा रहा है? बंगाल में तो लगता है, आपको कैसे लगता है बंगाल में? बंगाल में तो वहां पे तो मतलब यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन तब भी वो जो टीएमसी है उससे तो डायरेक्ट फाइट है, तो वोट स्प्लिट होने का चांसेस वहां पे ज्यादा है। लेकिन जहां पे यूनाइटेड ऑपोजिशन है वहां पे वो लोग वोट ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इसमें है तो बीजेपी भी अलायंस किया है 2019 से। इस बार अलायंस पार्टनर्स बढ़ा है। एक आरएलडी करके है यूपी में, उसके साथ अलायंस हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक टीडीपी है, और पवन कल्याण का जनसेना है। कर्नाटका में कुमारस्वामी का पार्टी है जेडीएस, उसके साथ अलायंस हुआ है। तो इस बार बीजेपी भी सेम सेम चीज कर रहा है, वो भी यूनाइटेड है, लेकिन कांटे का टक्कर होने वाला है इस बार भी। हाउ कैन यू कंपेयर द गवर्नेंस ऑफ मोदी जी एंड अटल जी? किसका क्या प्लस पॉइंट है, किसका क्या माइनस पॉइंट है? सॉरी, हाउ कैन यू कंपेयर द गवर्नेंस ऑफ मोदी जी एंड अटल जी? अटल जी और मोदी जी के गवर्नेंस में क्या कंपेयर कर सकते हैं आप? अच्छा, देखिए अटल जी वाज अ फिनोमेनन, ही वाज लाइक, but Modi, whatever Modi has achieved, no one has able to, no one has achieved as of now. Like उसके लिए रीजन भी है, he has got an absolute maturity, and like many of the things like Ram Mandir, like अटल जी जो बोला उस टाइम उनको राम मंदिर 370, और उनको बोला जाता था कि बीजेपी हमने कोर इशू से भटक गई है। लेकिन ये मोदी जो है वो हमने कोर इश्यूज पे कंसंट्रेट किया, और इस पे ही काम किया, राम मंदिर पे, 370 पे, सीएए पे, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, इस पे वो काम किया। और उसके साथ सबसे ज्यादा बात है कि मोदी बीजेपी को एक्सपैंड करने के लिए बहुत काम किया है। वो तमिलनाडु में बीजेपी को एक्सपैंड करने के लिए काम किया, साउथ में बीजेपी को एक्सपैंड करने के लिए काम किया है, बंगाल में एक्सपैंड करने के लिए काम किया है। वो अटल जी के साथ मिसिंग था। वो पार्टी को एक्सपैंड करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा किए नहीं, वो तो अलायंस पार्टनर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे कि वहां से वोट ट्रांसफर होगा। लेकिन मोदी अपने बल पे बीजेपी को उन स्टेट्स में पहुंचा रहा है जहां पे उनका कोई प्रेजेंस ही नहीं था। तमिलनाडु में आई थिंक 2014 में बीजेपी के पास एक सीट था, अभी वहां पे उनके अन्नामलाई के रैलीज में बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है। कर्नाटक ये
आंध्र प्रदेश में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस हो गया है, जबकि 2004 में हमको लगता है 0 सीट्स मिला था बीजेपी को उस टाइम। और आप देखिएगा कि इस बार तो बहुत से सिटिंग एमपीज का सीट टिकट काटा गया है, लेकिन आप जब मोदी का स्ट्रैटेजी और उनका हिस्ट्री देखिएगा, उनका ये आदत है, वो हमेशा कुछ कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। गुजरात इलेक्शंस में भी जब उनका बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था, तब भी वो बहुत से सिटिंग एमएलए का टिकट काटे थे। और ये बढ़िया सिंबल भी जाता है कि नहीं, आपको काम करना पड़ेगा तभी आपको टिकट मिलेगा। मोदी काफी चैलेंज लेने के लिए बहुत चैलेंजेस लेते हैं, और वो टेक्नोलॉजी को भी, हमको लगता है गुजरात इलेक्शंस में वो फर्स्ट टाइम वो 3D टेक्नोलॉजी यूज करके वो वोटर्स को एड्रेस किए थे। और बहुत से देखिए, इस बार तो बहुत सारे राज्यसभा एमपीज को लोकसभा का टिकट दिया गया है कि अगर तुम सच में काम हो तो तुम सच में जीत के दिखाओ। और तीन स्टेट का नया सीएम अपॉइंट करना है एक इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन से पहले, ये भी बहुत ही चैलेंजिंग काम है। आपको क्या लगता है ऑपोजिशन कैसे काम करेंगे और ऑपोजिशन क्या करेंगे, और क्या स्ट्रेटेजी मोदी अप्लाई करेंगे इस ऑपोजिशन के खिलाफ? 2024 का इलेक्शन के लिए हमको लगता है कि जहां पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पे बीजेपी का अच्छा प्रेजेंस है, जहां बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ है, जहां पे लोग बीजेपी के से जुड़े हैं। अब तो खैर हर जगह है, तो नरेंद्र मोदी का ऐसे ऐसे जगह से जय जयकार होता है कि जहां से आदमी सोच भी नहीं सकता था कि वहां बीजेपी का खाता भी खुलेगा, लेकिन वहां भी उनका जय जयकार होता है। अगर आप ही वेस्ट बंगाल में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए, तो फिर आप जानती हैं बंगाल में क्या सिचुएशन होने वाला है। और इस बार तो खैर अलायंस पार्टनर्स भी हैं, आरएलडी है, टीडीपी है, तो वो लोग सब तो वोट ट्रांसफर करेंगे ही। और वेस्ट बंगाल में भी क्या इस बार अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को लाया गया है, देखिए क्या होता है। मतलब, और राम मंदिर से रिलेटेड भी लोग इमोशन में जाके वोट करेंगे। करीब अभी तो 1.5 लाख 2 लाख लोग डेली विजिट कर रहे हैं राम मंदिर को। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब ये राम मंदिर को लेके 500 साल का लड़ाई चला। 500 साल तो छोड़िए, खैर वो तो डिफरेंट है, लेकिन 50 साल या 10 साल लोग बोलते थे कि नहीं, वहां पे तो राम मंदिर बनने ही नहीं देंगे, वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ स्कूल बनना चाहिए, ऐसे लोग बोलते थे। और अब तो वहां पे राम मंदिर बन गया और 1.5 लाख 2 लाख लोग विजिट कर रहे हैं। मतलब सोचिए, 1.5 लाख 2 लाख लोग के मन में था कि वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए, तो वैसे लोग तो वोट करेंगे ही। और इस बार हमको लगता है कि इस बार साउथ से, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन हम देख रहे हैं कि साउथ से आ रहा है, बहुत से साउथ के विजिटर्स हैं, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, जो कि आ रहे हैं अयोध्या दर्शन करने। उनके मन में कहीं ना कहीं बीजेपी को लेके एक भावना होगा। और दिस इज बियॉन्ड कास्ट लाइन, कास्ट का पॉलिटिक्स भी लोग खेलने की कोशिश की है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो दिस इज गॉन बियॉन्ड कास्ट। लोग हर कास्ट के लोग अपना भगवान राम का जो है वो लगाए हुए हैं डीपी इसमें व्हाट्सएप में, तो इसका कुछ तो फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है बीजेपी का वीकनेस क्या है? वीकनेस तो एक तो मैडम लोकल लीडरशिप जो है वो अभी भी, वो कभी जो लोकल लीडरशिप जो रहता है वो कभी वो अपोजिशन में चला जाता है, कभी वो बीजेपी का हो जाता है। वो तो एक प्रॉब्लम है ही। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि बहुत सा दल बंधु लोग जो है वो लोग को बीजेपी इस बार टिकट दिया है। तो हम इस बात को गलत नहीं मानते हैं, पॉलिटिक्स बहुत सीधा चीज नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन अगर आप दल बंधु को वोट टिकट देते हैं तो लोकल लीडरशिप को नाराज मत कीजिए, उसको डिसअपॉइंट नहीं कीजिए। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, मोदी जी के बाद आप प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर किसको देख रहे हैं बीजेपी आप?
हाँ, बीजेपी में तो उसके बाद तो बहुत से लोग क्यू में हैं, लेकिन सबसे आगे मेरे ख्याल से योगी जी हैं, क्योंकि योगी जी एक ऐसे स्टेट में उनके अगेंस्ट टफेस्ट ऑपोजिशन है। एसपी बीएसपी लास्ट टाइम दोनों का बाइंड था, लेकिन तब भी उनको हरा ना सका। और यूपी का जो कायाकल्प किया, एकदम टर्न अराउंड कर दिए हैं। तो वो तो खैर एकदम, मतलब जितना इंडस्ट्रीज आ गया है, जितना उसका पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी यूपी का देखिएगा, तो वो तो उसके नेबरिंग स्टेट से कंपेयर कर लीजिए, बिहार से कंपेयर कर लीजिए, एमपी से कंपेयर कर लीजिए। तो ये तो खैर एकदम कायाकल्प हो गया है यूपी का। तो जैसे यूपी का कायाकल्प किए हैं, वैसे वो भारत का भी कायाकल्प कर दें। वो तो हमको लगता है कर्नाटका के इलेक्शंस में, कर्नाटका कितना दूर है, वहां के इलेक्शंस में वो जाके कैंपेन करते थे योगी जी। थैंक यू सर, आप आए हमारे चैनल में, इतने बेबाकी से बात की। आप आपका बुक भी एक बार दिखा दीजिए लोगों को और बोल दीजिए। ये यही बुक है मैम। और इस बुक का कोई ट्रांसलेटेड हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन भी क्या आने वाले हैं या नहीं? हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं हो पाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन ही है। अभी फिलहाल तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में या लोकल लैंग्वेजेस में कोई ट्रांसलेशन, क्योंकि बहुत से लोगों को तो इंग्लिश आते नहीं है। हाँ, वो तो है। अच्छा, वो आपको पब्लिशर से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर वो किसी नॉलेजेबल पर्सन या स्कॉलर से इसको ट्रांसलेट करवा दें, तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। कि ये तो बात सही है कि बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। अगर लोकल लैंग्वेजेस में या हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए तो बहुत से लोग इसे पढ़ पाएंगे। जी 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 जी, वो लोकल लैंग्वेज में प्रिंटिंग करने में बहुत जगह दिक्कत होता है। तो अगर वो भी प्रॉब्लम पब्लिशर, वो भी चैलेंज पब्लिशर को फेस करना पड़ सकता है। थैंक यू सर, आप हमारे थैंक यू मैम, चैनल। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब हम लोग को टाइम दे रही हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं कि हम लोग भी अपना बात लोगों के बीच में रखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार थैंक यू, दर्शक, देखते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है। लाइक एंड कमेंट ऑन आवर चैनल।